Bismillahirrahmanirrahim. Mathematics, Algebra and Trigonometry for first year. Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 1, Number Systems. Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 1.1. Terminating decimals. A decimal which has only a finite number of decimal places is called a terminating decimal, such that 202.04, 0.0000415, 10000, 4123, 7895 are the examples of terminating decimals. जी इशारिये के बाद रुक जाए, इशारिये के बाद रुक जाए, ठीक है जी, तो उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल. A decimal which has only a finite number of decimal places is called terminating decimal. These are the examples of terminating decimals. Since a terminating decimal can be converted into a common fraction, so every terminating decimal represents a rational number. भाई जो भी टर्मिनेटिंग है वो एक रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा. रिकरिंग डेसिमल्स, रिकरिंग डेसिमल, रिकरिंग का मतलब बार बार आना. ए रिकरिंग डेसिमल आर पीरियोडिक डेसिमल इज ए डेसिमल इन विच वन आर मोर डिजिट्स रिपीट indefinitely. By one or more digits repeat indefinitely, it can be shown that the recurring decimal can be converted into a common. It can be shown that a recurring decimal can be converted into a common fraction. G. Thus, every recurring decimal represents a rational number. By every recurring decimal represents a rational number. Note: a non-terminating, non-recurring decimal represents irrational number. By non-terminating, non-recurring decimal represents irrational number because it is not possible to convert such a decimal into a common fraction. भाई उसको आप उसमें कन्वर्ट नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल 0.25, इसको 25/100 लिख लें, ठीक है, इज ए रैशनल नंबर. 0.3333 is approximately 1/3 is a recurring decimal, it is rational number. 2.3 के ऊपर बाहर है, इसको 2.33333 लिखा जाए, is a rational number. 0.142142857 142,857 ये इक्वल है 1/7 is a rational number. 0.01 001 0.0001 0.401 is a non-terminating non-periodic non-periodic decimal, so it is an irrational number. लिहाजा ये क्या होगा, irrational number होगा. अब ये क्या है जी, 214.12 1211 22 111 222 tetra 1 tetra 2 up to so on is also an irrational number. ये विभाजन क्या होगा, is also an irrational number. मुख्तार हुआ प्रोफेसर साजिद यासीन. अच्छा जी, 1.4142 up to so on is an irrational number. क्योंकि इशारिये के बाद रुक नहीं रहा और नेक्स्ट नंबर का हमें पता नहीं है, तो दिस इज irrational number. 7.3205080 up to so on is also an irrational number. क्योंकि इशारिये के बाद रुक नहीं रहा और हमें नेक्स्ट नंबर्स का कोई पता नहीं है जी, तो irrational number. 1.70997597 up to so on is also an irrational number. Pi क्या होता है, circumference of any circle divided by length of its diameter. By pi क्या होता है, circumference of any circle divided by length of its diameter. Is an irrational number. भाई ये क्या है, irrational number होगा जी. An approximate value of pi is, इसकी वैल्यू थी 22/7. अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होगी, 22 और ये irrational number है. भाई पाई क्या होगा, circumference of any circle, उसकी सर्कमफ्रेंस को और भैया लेंथ ऑफ इट्स डायमीटर को आपने क्या बोलना है, रेशो को पाई बोलना. irrational number, and irrational number and approximate value of pi is 22/7, 22/7. We have this circle, इसकी लेंथ ऑफ बाउंड्री को बोलते हैं सर्कमफ्रेंस, इसकी लेंथ ऑफ बाउंड्री को बोलते हैं सर्कमफ्रेंस, और जो लाइन सेंटर से पास करे
और इसकी एक्सट्रीमिटीज को इसको बोलते हैं डायमीटर। ये डायमीटर ए बी डायमीटर और ये जो लेंथ ऑफ बाउंड्री है इसको बोलते हैं सरकमफेरेंस। ये लेंथ ऑफ बाउंड्री को बोलेंगे सरकमफेरेंस, और ये जो लाइन सेंटर से पास करती है और इसकी एक्सट्रीमिटीज को सर्कल को मिलाती है, तो ए से बी जो होता है वो डायमीटर रिप्रेजेंट करेगा। तो भाई एडिशन लॉस नंबर 1 है क्लेगर लॉ ऑफ एडिशन। क्लेगर लॉ ऑफ एडिशन फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, ए प्लस बी बिलोंग करेगा आर, फॉर ऑल दिस रेड एज फॉर ऑल। भाई रियल नंबर्स, भाई एडिशन लॉस पहला है क्लेगर लॉ ऑफ एडिशन। भाई कोई सेट आर है, उसके कोई 2 पॉइंट्स ले लें, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू, इसके सारे के सारे एलिमेंट, उसमें से 2 कोई ले लें और उनको जमा करें और रिजल्ट किस में बिलोंग करेगी, आर में। तो इसको बोलते हैं क्लेगर लॉ ऑफ एडिशन या क्लेगर लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। भाई जो भी सेट आपके पास अवेलेबल है उसके कोई 2 मेंबर्स ले लें, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब आर के अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स, उसमें से आपने कोई 2 लिए, उनको जमा करो, रिजल्ट किस में बिलोंग करे, आर में। तो हम कहेंगे क्लेगर लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड्स। एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन जी, भाई फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, ये आर कोई सेट है, इसके फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर का मतलब आर के अंदर जितने भी एलिमेंट है सारे के सारे, भाई सारे के सारे, ठीक है जी। इस कंडीशन को क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल ए प्लस बी प्लस सी, इनका ब्रैकेट्स आगे पीछे कर दें तो इक्वालिटी के ऊपर कोई फर्क ना आए, तो इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। भाई एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, कोई 3 एलिमेंट ले लें इसके सारे एलिमेंट्स में से, उनके ऊपर ब्रैकेट्स आगे पीछे करें, कोई फर्क ना पड़े, तो इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। एडिटिव आइडेंटिटी फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, एडिटिव आइडेंटिटी देयर एग्जिस्ट, इसको बोलते हैं देयर एग्जिस्ट 0 बिलोंग्स टू आर। भाई देयर एग्जिस्ट 0 बिलोंग्स टू आर सच दैट ए प्लस 0 या 0 प्लस ए इज इक्वल टू, भाई इसके अंदर एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है जी, जो किसी के साथ भी अटैच करें उसके ऊपर कोई फर्क ना पड़े। 0 इज कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन या आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। भैया 0 इज कॉल्ड द आइडेंटिटी एलिमेंट, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट कह लो, एडिटिव आइडेंटिटी कह लो या एडिटिव आइडेंटिटी लॉ कह लो। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, जो भी सेट आपके पास है उसके सारे के सारे एलिमेंट, ठीक है जी, सब एलिमेंट देयर एग्जिस्ट 0 बिलोंग्स टू आर सच दैट ए प्लस 0 या 0 प्लस ए इज इक्वल टू ए। 0 इज कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन जी, इसको क्या बोलना है, एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट या आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन जी। मुख्ताजिद व प्रोफेसर साजिद यासीन। अच्छा, एडिटिव इनवर्स फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, जो भी कोई सेट होगा उसके सारे के सारे एलिमेंट उसमें से कोई ले लें, देयर एग्जिस्ट माइनस ए बिलोंग्स, उसके अंदर उसका इनवर्स भी होना चाहिए, और इनवर्स को जब ओरिजिनल के साथ मिलाओगे जो आपके आएगा जी आइडेंटिटी, जो आपके आएगा आइडेंटिटी जी। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, आर कोई सेट है उसके सारे के सारे एलिमेंट उसमें से कोई एक ले लें, देयर एग्जिस्ट माइनस ए बिलोंग्स टू आर, उसके अंदर उसका इनवर्स भी होना चाहिए, और इनवर्स की खूबी जब उसको ओरिजिनल के साथ मिलाएंगे जो आपके आएगा आइडेंटिटी। अब कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन का मतलब है आर के अंदर सारे के सारे एलिमेंट, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब आर के सारे एलिमेंट, ये सेट के सारे के ए प्लस बी किसके बराबर होगा, बी प्लस ए के। भाई ए प्लस बी किसके बराबर होगा, बी प्लस ए के, तो अगर ऐसा हो तो इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जी। नाउ सेम प्रॉपर्टीज फॉर मल्टीप्लिकेशन लॉज, भाई मल्टीप्लिकेशन के लिए भी सेम लॉज। नंबर 1 क्लेगर लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी के अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स जब उनको आपस में कोई 2 लेकर उनको प्रोडक्ट लिया जाए और रिजल्ट किस में बिलोंग करेगी, आर में, या इन सिंपल ए डॉट बी लिख लो या ए इंटू बी बिलोंग्स टू आर जी। एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन फॉर मल्टीप्लिकेशन, तो भाई जिनका होगा फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, ए बी सी के अंदर फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर का मतलब आर के अंदर सारे के सारे ए इंटू बी सी बराबर होगा ए बी इंटू सी, भाई ए इंटू बी सी बराबर होगा ए बी इंटू सी, ठीक है, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। आगे है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, सारे एलिमेंट्स के लिए देयर एग्जिस्ट 1 बिलोंग्स टू आर, तो इसके अंदर एक ऐसा एलिमेंट 1 होना चाहिए, 1 को किसी के साथ भी, ए को 1 के साथ जब दो, 1 को ए के साथ जवाब ए आएगा जी। दिस 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर्स। भाई विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आइडेंटिटी होती है 0,
और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी होगी 1। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भाई फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर इज नॉट इक्वल टू 0, 0 ना हो जाए। देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स बिलोंग्स टू आर सच दैट ए को एक इनवर्स के साथ रख दो या ए इनवर्स को एक के साथ रख दो, जो आपका बाजी 1। ए इनवर्स आल्सो भी रिटन है, जिसको ए इनवर्स को आप 1 ओवर ए भी लिख सकते हैं। भाईजान मल्टीप्लिकेटिव हर एलिमेंट का इनवर्स उसके अंदर होना चाहिए, और इनवर्स को जब ओरिजिनल के साथ लागू जो आप कहेगा आइडेंटिटी। आगे कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, आर के अंदर सारे के सारे एलिमेंट, आर के सारे एलिमेंट उसमें कोई दो ले लें और ए बी किसके बराबर हो जी बी, अगर ऐसा हो जाएगा तो इसको बोलेंगे कम्यूटेटिव लॉ। इसको क्या बोलेंगे? कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जी, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। माँ के बारे में खसूसी हदायत, माँ के बारे में खसूसी हदायत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला बयान करते हैं कि एक शख्स हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और पूछा, इंसानों में से मेरे हुस्न सलूक का सबसे ज़्यादा मुस्तहिक कौन है? हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, तेरी माँ। इसने अर्ज़ किया, माँ के बाद फिर कौन? आपने फरमाया, फिर तेरी माँ। इसने फिर अर्ज़ किया, इसके बाद कौन? आपने फरमाया, तेरी माँ। इसने चौथी दफ़ा पूछा, फिर कौन? अब आपने फरमाया, आपसे फरमाया, तेरा बाप, तेरा बाप। ये मुस्लिम शरीफ में यह हदीस मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वंस अगेन हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह बयान करते हैं कि एक शख्स हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और पूछा कि इंसानों में से मेरे हुस्न सलूक का सबसे ज़्यादा मुस्तहिक कौन है? हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, तेरी माँ। इसने अर्ज़ किया, माँ के बाद फिर कौन? आपने फरमाया, फिर तेरी माँ। इसने अर्ज़ किया, फिर इसके बाद कौन? आपने फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, फिर तेरी माँ। इसने चौथी मरतबा पूछा तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर कौन? अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर तेरा बाप। मुस्लिम शरीफ में यह हदीस मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तशरीह है, ये जो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दफ़ा माँ का नाम लेने के बाद फिर चौथी दफ़ा बाप का नाम लिया, इससे उलमा ने यह नतीजा निकाला कि ऐसा करने से हजूर की मुराद माँ के हकूक़ पर खुसूसी जोर देना था, क्योंकि अगर बच्चे का कफील बाप ही होता है, मगर उसे पालने पोसने और उसकी देखभाल करने में जितनी मुशक्क़त माँ उठाती इतनी बाप नहीं उठाता। लिहाजा जहाँ तक खिदमत करने और उसने सलूक करने का ताल्लुक है, माँ के हकूक़ बनिस्बत बाप के ज़्यादा हैं। अल्लाह ताला हम सबको हदायत वाली, ईमान वाली, तंदुरुस्ती, सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह हम सबको रियाकारी से बचाए। कुफ़ारा मजलिस की दुआ पढ़ लें। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।